We already started our chapter 3rd, constitutional design. And now we are at the stage that we understood so many concepts related to constitution. What is constitution? Why we need, or any country need, a constitution? What are the functions of constitution? Who empowered the government? Who empowered the people? And especially we talk about the Constitution of India, and comparatively we also understand the Constitution of South Africa, in what conditions, in what circumstances they got their independence and their constitution was written. Like India, in India we also face so many challenges, so many problems, and lastly we attained our independence and we also wrote our constitution. So now we understand that why this constitution was written, and how this constitution, what processes that it followed by writing the constitution, कि हमने किन stages को clear किया. So in our previous class we discussed about the role of Constituent Assembly. So there is a question in mind: who are the people who have given the right, who were the empowered people who wrote the constitution? किसने इन्हें अधिकार दिया? कौन थे ये लोग? These were the credible people. ये लोग कौन थे? ये वो credible people थे. These people that the people, all the, we can say, citizens, they have the faith on these people. Who are these? The leaders. Because the Constitution of India, it was written by these leaders. They were very experienced and they suffered a lot that time, and they knew what type of constitution should be adopted in India. We already discussed about the historical background, like the Motilal Nehru's committee, Karachi session, and then all types of we can say in the historical past was also there of writing this constitution. So what the constitution today we have, it is the outcome of their efforts. So today we will discuss about some another topics of this chapter. Already we discussed about the Constituent Assembly. The Constituent Assembly, in which we discussed about who were the members of this Constituent Assembly. Yesterday I told you, in this assembly 2 types of members were there. Who were these members? Some were the provinces, legislature, provinces. They choose their members and they send to this assembly. यानी मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया, जो कि कुछ तो प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ क्या थे, व्हाइट पीपल, जो कॉलोनी, जो प्रोविंसेस थे, उनमें जो हर स्टेट के अंदर हमें इतनी फैसिलिटी मिली हुई थी कि हर स्टेट के अंदर क्या थी, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी. उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने में से ही कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके असेंबली में भेजा था. उनमें इंडियंस भी थे. तो ये जो असेंबली थी ओवरऑल क्या वर्क कर रही थी, इसको टास्क दिया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का. ठीक है. तो ये इन्होंने पूरे प्रोसेस को फॉलो करके, डिबेट है, डिस्कशन है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सब, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. अभी थोड़ा सा और एस्पेक्ट हम देखेंगे. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आता है कि हम इतने साल हो गए आजाद हुए हुए, ठीक है, इतने साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, लेकिन आज भी हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है. उसका क्या रीजन है? क्यों आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमारी कंट्री चल रही है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो आज हम उन्हीं रीजंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. तो वो रीजंस क्या हैं, चलिए बात करते हैं. वो रीजंस क्या हैं उसकी बात करते हैं. तो रीजंस ये है, व्यूज ऑफ मेंबर्स ओनली. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय जो व्यूज थे वो केवल यस आदित्य, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
Ma'am, video is not clear. वीडियो इज नॉट क्लियर. ओके, Yes, ma'am. देखते हैं. एनीबॉडी एल्स? और किसको प्रॉब्लम आ रही है? यस, टॉपिक. ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ. ओके ओके. हाँ, टॉपिक बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? यश, मैम, हाँ बोलो. वीडियो इज नॉट क्लियर. ओके, आई विल कॉल समबडी. जस्ट वेट अ मिनट. वीडियो क्लियर नहीं है. चलिए. Okay, now what was the reason behind why we should accept the constitution that was framed 50 years before? ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे अब इस चीज को कि 50 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आज भी हमारे देश की सरकार और लोग उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चल रही है. व्हाट इज द रीजन? तो इन कुछ रीजन की हम बात करते हैं. देखिए, वी एवरीबडी नो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन थे? मेंबर्स थे. मेंबर्स किसके थ्रू आए थे? लेजिस्लेचर प्रोविजंस के थ्रू. यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं थी, हम सब लोगों ने उसको नहीं चुना था. तो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये वो मेंबर्स थे, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लेकिन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ दीज मेंबर्स. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द ऑल द व्यूज ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. सबका व्यूज कैसा था, सबकी एस्पायरेशंस कैसे थी, सब कैसा संविधान चाहते थे, कैसा क्या उनके गोल्स थे, इन सारी चीजों को ध्यान रखकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. That's why we see that in this time, because of the needs, we can say with the course of time, the needs, the aspiration, according to that, the constitution can be amended, the constitution can be altered, the constitution can be changed. यानी हमारे जो संविधान बनाने वाले फ्रीडम जो फ्रेमर्स थे, वो ये मान के चलते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोई अनऑल्टरेबल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आएगा. इसलिए हमने माना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल उन मेंबर्स का व्यूज नहीं था, ये व्यूज किसका था? ओवरऑल सारे पीपल का था, जिनकी उनकी डिजायर्स थी, उससे जुड़ी हुई गोल्स थे. ब्रॉड कंसेंसस था. ब्रॉड कंसेंसस यानी जितने भी मेंबर्स थे उनका कंसेंसस था, इसमें सहमति थी, प्लस आम लोगों की, पब्लिक. कैसे पब्लिक की कंसेंसस? आप कहोगे मैम कैसे पब्लिक की कंसेंसस, क्योंकि ये जो असेंबली थी उन लोगों ने तो चुनी नहीं थी. पब्लिक की कंसेंसस ऐसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्राफ्ट जो भी लाया गया उसको पब्लिकली प्रूव करना था. पब्लिक के सामने उस ड्राफ्ट को लेके गए, पब्लिकली वो डिबेट हुआ. अब पब्लिकली डिबेट ये मत समझना कि एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो सबने उस ड्राफ्ट को पढ़ा, नहीं. उनमें से भी कुछ जो लोग जो एलिजिबल पीपल होते हैं ना, जो एलिजिबल पीपल होते हैं, जो एजुकेटेड कह सकते हैं या फील्ड, उनके बीच में वो जो है डिबेट डिस्कशन हुआ. तो पब्लिकली ये प्रूव्ड हुआ जब तब ब्रॉड कंसेंसस मिला. ब्रॉड कंसेंसस इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सहमति मिली. थर्ड चीज क्या थी कि ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था. दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, it is not especially for representing any region, it is represented just for the whole the nation. पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था. और पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसका क्या मतलब होता है? ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल, यानी जितने भी सेक्शन है, पुअर, रिच, हाई कास्ट, लो कास्ट, इन सब लोगों के कंसेंसस को शामिल किया गया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पीपल. We say that representative government. What do you mean by this? It means the government which is chosen by the people, means it is they gave their consensus of choosing the government. अपनी सरकार को चुनने में उन्होंने कंसेंसस दी, तो यानी होल कंट्री की गवर्नमेंट बन गई एक हमारी.
ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक है, पूरी कंट्री का होल कंसेंसस था, बिकॉज थ्रू द डिबेट एंड डिस्कशन लोगों के क्या व्यूज है, लोगों की क्या एस्पायरेशन, लोगों की गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि 50 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था आज भी हम उसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, आज भी हमारी सरकारें जो है उसके हिसाब से काम क्यों कर रही है। दिस इज द रीजन। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि दिस वी एग्री द पॉइंट कि जो नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, इट वाज नॉट चोजन बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, as we already discussed about that how this assembly was declared or how the assembly was chosen. It was according to the provincial legislature. But what is here? It means that you know that India is a diverse country. Geographical area is also diverse. But just keeping in mind in this, all the geographical regions, the people are, the representative are, they are included in this assembly. Different caste, different culture, different religion followers people, they were included in this assembly. And what is the reason behind it? Because we are just talking about the representation of whole the nation, representation whole the nation through a constitution. एक संविधान के द्वारा, एक संविधान के जो है उसके थ्रू जो है पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? ज्योग्राफिकली हर रीजन से मेंबर्स आए, हर रीजन से मेंबर्स आए, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, वी कैन से डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर ऑफ पीपल। अब मुझे एक बात बताइए, तब तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए सबके कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर मैम इतने सारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल आए तो हर कोई अपना जो फायदा होगा, यानी अपने जो जिसको कहा जाए कम्युनिटी को बचाने की कोशिश करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपनी कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस लाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट एस्पायरेशंस है, डिजायर्स है। जो लो कास्ट पीपल है वो कहेंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो जिसको यूं कहा जाए कि बहुत ही बैकवर्ड जो पीपल है वो कहेंगे हमें कभी आगे आने ही नहीं दिया, तो हम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए, हमें ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। ऑल थिंग्स वर देयर, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वर आल्सो देयर, लेकिन सबने अपने अपने रीजन का तो उनका यूं कहा जाए कि उसको तो इन्होंने आगे रखा ही, लेकिन ओवरऑल नेशन जो जिसको कहा जाए बेनिफिट, पूरे राष्ट्र का भला किसमें है, वेलफेयर किसमें है, सबसे पहला सोल मोटिव वो था। व्हाट वाज द सोल मोटिव? फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल नेशन। पहला क्या सोल मोटिव था कि पूरे राष्ट्र का ध्यान, उसके राष्ट्र के ध्यान के साथ साथ अपने रीजन की कम्युनिटी का भी ध्यान रखा गया। अब आपको मालूम ही है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की जब हम बात करते हैं, व्यूज आर डिफरेंसेस, आइडियाज आर डिफरेंट, सब कुछ अलग अलग था, क्लैशेस भी थे, कॉन्फ्लिक्ट भी थे। आप बताइए मुझे, इतना बड़ा संविधान लिखने जा रहा है, क्या वो इजीली सबने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस आए थे और उसके बावजूद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो कि 1885 में आई थी पार्टी, ये एक सिंगल पार्टी थी उस समय, जो हमारे कंट्री के अंदर यूं कहा जाए एक प्लेटफॉर्म था स्ट्रगल करने का। इट जस्ट गेव अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओनली वन पार्टी वाज देयर। और जितने भी हम लीडर्स की, मेंबर्स की बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू, CR दास, जितने भी, दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी। ऑलवेज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Mahatma Gandhi and Congress party, and this party was also divided in two parts. थोड़ा सा ही बताऊंगी आपको इसमें। This party was also divided between two parts because of their different opinions, extremists and moderates. Extremist people, they believed in the some radical steps. वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकालना है, उसके लिए वायलेंस करना पड़े तो करेंगे हम, ठीक है। जबकि मॉडरेट क्या जा रहे थे, मॉडरेट ये चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ रहें, लेकिन हमें जो है जो लेजिस्लेचर है उसमें कुछ सीटें दे दें।
और हम जो है अपनी सीटें मिल जाएगी तो हम अपने देश का क्या करते थे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन रूल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल था? तो इसलिए ये स्प्लिट हो गया, कांग्रेस के अंदर दो सेक्शन में बट गया, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से। बाद में वापस एक हो गया और तरीका क्या अपनाया, रेडिकल मेजर्स को अपनाया। आपको पता ही है कि इतने सारे गांधी जी जब वो गांधी जी अफ्रीका से आए, वो आए थे 1915 में भारत आए थे। तो महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने डिफरेंट, आपको पता है, मूवमेंट्स चलाई। वो डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए और उनको हटाने की यहाँ से कोशिश की। यू एवरीबॉडी हियर अबाउट द रॉलेट एक्ट इन योर क्लास 10th, you will thoroughly read about all that, non corporation, civil disobedience movement, number of movements were there। तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उस समय यही एक पार्टी थी और जिसने कहा जाए कि पूरे फ्रीडम जो स्ट्रगल था वो इसी के थ्रू हुआ, इस पार्टी की, इसी पार्टी के अम्ब्रेला का नीचे सारे मेंबर्स थे। बट व्हाट वाज दैट द बेसिक, कितना भी उनके डिफरेंसेस थे, कितने भी ओपिनियंस थे, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स दे वर डिसाइडेड फॉर द सेम। बार बार बेसिक की बात आ रही है बच्चों, बार बार जब बेसिक की बात आ रही है तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका बेस था, बेसिक जो चीज है वो सबका एक्सेंट था उसमें। डिफरेंसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन है कि जितना ज्यादा डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट्स होंगे उतना नेगोशिएशन होगा, उतना डिबेट होगा, उतना डिस्कशन होगा और आउटकम क्या आएगा, बेस्ट। जो कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। So that's why this is argument is also necessary, rationality is also necessary. Wherever you just to you see the political phenomena in our nation, you should not just go and accept that. There should be a rationality. You should argue with all the things. Why we should accept it? What is the reason behind it? What will be the outcome? All things should be argued. This is the way. So that's why we just get the best constitution because of all these reasons. The basic, what are the basic principles of constitution? It was just adopted by all the members. In spite of that, there were some, we can say, arguments. There were some differences in opinions and ideas. Now, in this, a very important role of Dr. B.R. Ambedkar. You know, मैंने अभी क्या बताया आपको, conflicts थे, differences थे। तो डिफरेंसेस किसमें थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ओपिनियन में और महात्मा गांधी जी के ओपिनियन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एज यू नो, कि उनका क्या रोल रहा, ही वाज द, वी कैन से दैट, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जी, ड्राफ्ट तैयार हुआ, एक कहते हैं ना कच्चा, एक जो घर बनता है तो जो आर्किटेक्ट होता है वो पूरा एक नक्शा तैयार करता है, ऐसा ही एक कच्चा ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसने शुरू किया, जिस कमेटी को ये काम दिया गया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन। But what was the conflict between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar? चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, he was also belong to a very low caste in Maharashtra. बहुत पुअर फैमिली, बहुत मेहर फैमिली थी, उनकी कास्ट का नाम मेहर था, उस जाति के थे। He also faced so many discrimination because of their caste. एक बार तो उनको जो है गाड़ी के अंदर बैठे तो उन्होंने उनकी कास्ट पूछी तो उनको वहां से उतार दिया, ट्रेन में बैठने नहीं दिया, अपने फादर के पास जाना था वो जा नहीं पाए। तो इस तरह की अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। जब, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक लॉयर थे, उन्होंने लीगल बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो उन्हें एक जिस कहते हैं कि बहुत अच्छा प्लेस मिला इस चीज में। उस समय उनका एक महात्मा गांधी जी का और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में एक कंफ्लिक्ट था। वो कंफ्लिक्ट क्या था, इक्वालिटी को लेकर। देखिए, इंडिया की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, सभी बच्चे मानते हैं इस बात को। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर। कास्ट की बात हम ज्यादा करेंगे क्योंकि पूरा फोकस उस पर ही। तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि जब इलेक्शन, देखिए भारत आजाद हो गया तो उस समय वापस जो गवर्नमेंट चुनी जानी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, तो उसमें ये चाह रहे थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो,
बच्चों चीजों को टेक्निकल चीजें थोड़ा समझ लें। ये हमारी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर वो ये चाह रहे थे कि जैसे ये रीजन है या ये रीजन है, इसको सेपरेट कर दिया जाए इस कंट्री से, और यहाँ पर केवल एक तो जो मेंबर होगा, जो मेंबर चुना जाएगा वो होगा लो कास्ट का, और उसे वोट भी कौन करेंगे? लो कास्ट पीपल। इससे वो इक्वालिटी लाना चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात? पर्सन रिप्रेजेंटेटिव belong to low caste, Dalit, and all the person who will vote or cast in that they also belong to low caste. यानी जो जनरल पीपल अगर इस एरिया में रह रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर दो, बाहर निकाल दो। ये डिफरेंस। और गांधी जी कह रहे थे कि हम ऑलरेडी इतना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट की अलग प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आप सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे, तो हमारा देश एक कैसे होगा, यूनिफाइड कैसे होगा? इक्वालिटी लाने का ये तरीका नहीं है, इक्वालिटी लाने का ये तरीका नहीं है, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस था इक्वालिटी को लेकर। महात्मा गांधी जी ने क्या सजेशन दिया? महात्मा गांधी जी ने कहा कि इक्वालिटी लानी है तो उसका तरीका ये है। उन्होंने कहा कि ये कंट्री होगी, ये प्रोविंसेस होंगे, किनके? जिनको हमने दलित कहा है। मान लिया यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तो लो कास्ट पर्सन होगा, ठीक है, बिलोंग टू लो कास्ट, लेकिन उसको वोटिंग कौन करेगा? ऑल पर्सन दे आर रिसाइडिंग इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर जितने भी चाहे जनरल कैटेगरी के लोग ही क्यों नहीं है, वो सब एक उस पर्सन के लिए वोट करेंगे। हाँ, वो सीट किसकी होगी? अभी भी आपको मालूम है कि यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है SC ST अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। सीट जो पार्लियामेंट में, जो हमारे जो रीजन्स में जो सीट्स होती है चुनाव लड़ने की, वो और पार्लियामेंट के अंदर जो सीट है वो इनकी रिजर्व्ड सीट्स है। तो ये उस समय सुझाव आया, गांधी जी ने ये कहा, तो एक पूना पैक्ट साइन हुआ। उस पूना पैक्ट के थ्रू डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की बात को माना और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ना करके उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर सीट दिस विल बी गिवन टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और पर्टिकुलर कास्ट पीपल, तो उस कम्युनिटी को दिया गया। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस दे अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा अप्रूवल हुआ और सारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। सेवरल राउंड्स वर देयर, several discussion, clause by clause discussions were there, and in this, according to your, that 2000 amendments were also there. 2000 amendment. Can you imagine? 2000 amendment आए। What do you mean by amendment here? ये आपके टॉपिक है। Amendment is means to bring a change in constitution. संविधान में जरूरत के हिसाब से कोई भी अगर कोई चेंज लाएगा तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। और उस समय 2000 अमेंडमेंट की बात हो रही है, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जो आइडियाज आएगा, जो ड्राफ्ट तैयार हुए, उसमें सब लोगों ने सहमति नहीं दिखाई, सब लोग उससे एग्री नहीं हुए, इसलिए अगला स्टेप क्या लिया? अमेंडमेंट का लिया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दी 2000 अमेंडमेंट, और ये जो पूरी जिसको कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस चला, कितनी मीटिंग्स हुई? 114 डेज मीटिंग्स हुई। अब इसको कन्वर्ट कर लो खाली, तो 2 साल आपके और 18 महीने और 11 दिन, अप्रोक्स 3 years हो जाएंगे। 114 डेज मीटिंग्स एंड document were preserved. Document means whatever the discussion and debates were there, all the documents इसको क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखा गया, वो जो तैयार हुआ, वो that was called a document. All documents were preserved. Originally it was written there in 12 bulky volumes. अब एक जीके का साथ में क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। उस समय जो पर्सन था जिन्होंने ये सब कुछ लिखा हिंदी एंड इंग्लिश में, प्रेम बिहारी पर्सन, जिन्होंने ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, इनके साथ और मेंबर्स भी थे, बट वही होता है कि जो लीडर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसको, वो भी थे।
तो प्रेम बिहारी जी जो थे, उन्होंने जो भी वहां पर डिबेट डिस्कशन हुए, व्हाट वाज कॉल्ड ऑल दैट, दीज वर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट। क्वेश्चन बनता है, what do you mean by constitutional assembly debate? The debate where the amendments were bring, or we can say for framing the constitution, number of debates and discussions were there among different members in the assembly. So in this we come to know that this constitution assembly debate, it was written, this constitution was written in Hindi and English, both the languages, in 12 bulky volumes, and these constitution, which is in original in form, it is still in library, Parliament's library. What it inspired? What inspired? What is written in our constitution? That we always talk about constitution. We always, whatever our government do, according to whatever the assembly, whatever the meetings are there in both the houses, they always talk about the constitution. What is written in this? These, we can say the provinces, we can say the provisions and articles. These are, which are written in our constitution, are called the guiding principles for just running the nation or running the country. Now, अभी जब हम बात करें, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था 395 आर्टिकल्स थे, और अब जो बात कर रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि कितने अमेंडमेंट हुए, 448 आर्टिकल्स हैं, इसके कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट है, 25 सॉरी पार्ट्स हैं, पहले 12 थे, 12 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, पहले 8 थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक नहीं है, ये जो लिखा गया वो कभी चेंज नहीं होगा। So that's why what are the guiding values of the Indian Constitution? The values which comprised in our Constitution are that it is written in our preamble. What is written in our preamble? It is also in your textbook. Some values that we can discuss about the socialistic, republic, democratic, secular. Some types of these values are included in our preamble, and these are guiding principles for all the government over and over a generation, we can say, or over years to run the country. That's why we say that who are the people who can take decisions in our nation? This is the government. The government, it is not according to its own desire or own will. It is according to the Constitution. Constitution empowered government. Constitution ने power किसको दिया? Government को दिया. Now we will read about something, we discuss about the role of Mahatma Gandhi. देखो जो आपका प्रेम्बल है उसके अंदर जो वर्ड्स है ना उसको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी। फर्टिनिटी किसे कहते हैं, सेकुलरिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज वर्ड्स, दीज हैव अ डीप मीनिंग। और हमारा पूरा प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल इट इज वी कैन से दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहते हैं ना कि आपको कोई चीज कहते हैं बुक के आगे प्रीफेस लिखा होता है, वो प्रीफेस क्यों होता है, वो पूरे आपके बुक के अंदर क्या है वो सारी नॉलेज उस प्रीफेस से मिल जाती है। तो प्रेम्बल जो है उसमें गाइडिंग वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक गवर्नमेंट को, एक नेशन को चलाने के लिए क्या वो वैल्यूज फॉलो करें। चलिए महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने अभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ उनका जो डिस्कशन हुआ था वो आपसे मैंने बात की थी। अब महात्मा गांधी की बात ये करते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या इस नेशनल असेंबली के मेंबर थे? यस, कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड कि महात्मा गांधी नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके मेंबर थे क्या? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो आंसर। यस मिलन, yes Milind,
Yes, ma'am. ओके, चलिए और किसी से पूछते हैं। यस विकायत, बताइए। यू नो आंसर? No, ma'am, he was not the member. Very good. He was not the member of Constituent Assembly. It is correct answer. Very good. चलिए, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो किसी पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, ना कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, ना ही वो किसी असेंबली के मेंबर थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ब्रिंगिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी जी क्या थे? गाइडिंग प्रिंसिपल थे, यानी वो जो उनकी मॉरल वैल्यूज थी, जो उनकी वैल्यूज थी, जो उनके प्रिंसिपल थे, इट वाज डेलिबरेटली फॉलोड बाय अदर लीडर्स ऑल्सो। उनमें वो एक शख्सियत में ताकत थी इस चीज की, जिसको कहा जाए वो एक एमिनेंट पर्सनालिटी थे, जिनकी सादगी, जिनके सिंपल स्टेप्स से हमारा देश प्राप्त हुआ। केवल मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल गांधी जी के एफर्ट से, नंबर ऑफ लीडर्स वर आल्सो बिहाइंड इट, लेकिन जो मूवमेंट चलाए गए, इट वाज द आइडिया ऑफ ओनली बाय सोलमली टेकन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज थी कि अगर देश आजाद होता है और उसके बाद अगर यहाँ का संविधान लिखा जाता है तो वो कैसा होगा। Some speech, the speech is given in your textbook also. गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहते थे ये आपकी बुक में भी लिखा है। वो ऐसा संविधान चाहते थे जहां पर इक्वालिटी हो, जहां पर सबको इक्वल राइट्स मिले, जहां पर जो ये अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके, जहां पर पार, जो पूरी पार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास हो, लेकिन जो लीगल जो पार जिसको कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास हो, बट बिकॉज ऑफ द रनिंग द नेशन गवर्नमेंट विल बी एम्पावर्ड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ लिमिटेड एरिया। एब्सोल्यूट पावर्स आर नॉट गिवन। एब्सोल्यूट पावर्स क्यों नहीं है? व्हाई आई से दैट कि एब्सोल्यूट पावर्स आर नॉट एंजॉयड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव द पावर। व्हाट इज दिस पावर? फंडामेंटल राइट्स। थ्रू दिस राइट्स वी कैन चेक, वी कैन लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। They have this power to ask questions. They have this power to seek redressal in courts if anybody or any institution who encroaches our rights. So in this way, we come to know that the idea of Mahatma Gandhi, it was also followed by a number of leaders, number of persons at that time. It was just they just wanted the constitution. It is according to the aspirations and goal of the people. Dr. B.R. Ambedkar, he also gave his ideas about the return of this constitution. It was some different idea, slightly different, because there, you know everybody that I told you there were some differences in Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. So all thoroughly I discuss with you their speeches, because you yourself will not read, I know this. So through this, I will just tell you what speeches it was delivered by them. We will discuss. And one more thing here, the idea about the what type of constitution would be in India, it was in his book Young India. It is very important GK question. It was written in 1931, where he gave his idea about the constitution. So it was also printed and circulated. Now the people also came to know about the ideas of Young India and the what type of constitution would be like that. Later we will discuss now. महात्मा गांधी जी के रोल के बाद अगर हम बात करते हैं, वो बात है कि फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, मुझे आप बताइए। यस कौशिक, yes Kaushik, any question you want to ask? जितना टॉपिक आज डिस्कस किया सबको समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
Everybody. Any question you want to ask? Good, very good, very good. Thank you for cooperation. I just want this zeal, enthusiasm to read, to understand the subject. Yes, Pranav. Any question you want to ask? No, ma'am, I don't have any doubt. Okay, okay, very good, very good. So, 2 minutes are left here only. So I think tomorrow I will start a new topic. आज जितना किया वो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है. You all have textbooks. You go through the textbook. Tomorrow we will discuss the remaining. Tomorrow means day after tomorrow on Monday we will discuss the remaining topics and we will do some important questions also. Okay. Till then, have a good day. God bless you.